दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। आज मैं पढ़ूंगी राष्ट्रपति की क्षमा संबंधी शक्तियाँ। राष्ट्रपति को क्षमा करने का भी पावर है, संविधान में दिया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 72 एंड 73 पढ़ूंगी मैं आज। आर्टिकल 72 क्या कहता है? आर्टिकल 72 पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन्स etc. and to suspend, remit or commute sentences in certain cases. Number 1, the President shall have the power to grant pardons, reprieves, respites or remissions of punishment or to suspend, remit or commute the sentence of any person convicted of any offense. A. In all cases where the punishment or sentence is by a court-martial. B. In all cases where the punishment or sentence is for an offense against any law relating to a matter to which the executive power of the Union extends. Power of the Union extends. C. In all cases where the sentence is a sentence of death. Number 2. Nothing in subclause A of clause first shall affect the power conferred by law on any officer of the armed forces of the Union to suspend, remit or commute a sentence passed by a court-martial. Number 3. Nothing in subclause C of clause first shall affect the power to suspend, remit or commute a sentence of death exercisable by the governor of a state under any law for the time being in force. यानी जो राष्ट्रपति को क्षमा संबंधी शक्तियां हैं, जो वो क्या करते हैं, किसी के एक तो मार्शल कोर्ट से संबंधित उनकी जो पावर्स हैं उन केसेस में, और दूसरा है जो नेशनल लेवल पर जो भी किसी को मृत्युदंड मिला हुआ होता है, बिग ऑफेंसेस उसमें जो होते हैं, तो उनको भी क्षमादान कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। यानी जो मृत्युदंड जो दिया जाता है कोर्ट के थ्रू, तो उसको वो उम्र कैद में भी बदल सकते हैं। उनके पास वो पावर है राष्ट्रपति के पास। तो मैं हिंदी में बताऊंगी सही से। अभी तो मैं पढ़ूंगी 73 आर्टिकल 73 extent of executive power of the Union. Number 1. Subject to the provisions of this Constitution, the executive power of the Union shall extend A. To the matters with respect to which Parliament has power to make laws, and B. To the exercise of such rights, authority and jurisdiction as are exercisable by the Government of India by virtue of any treaty or agreement, provided that the executive power referred to in subclause A shall not save as expressly provided in this Constitution or in any law made by Parliament, extend in any state to matters with respect to which the legislature of the state has also power to make laws. Number 2. Until otherwise provided by Parliament, a state and any officer or authority of a state may, notwithstanding anything in this article, continue to exercise in matters with respect to which Parliament has power to make laws for that state, such executive powers or functions as the state or officer or authority thereof could exercise immediately before the commencement of this constitution. अब मैं पढ़ूंगी हिंदी में कि राष्ट्रपति की क्षमा से संबंधित क्या क्या शक्तियां हैं। अनुच्छेद 72 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति।
नंबर 1, राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति। का, उन सभी मामलों में जिनमें दंड या दंडादेश सेना न्यायालय ने दिया है, यानी जो मार्शल कोर्ट से जो जुड़े हुए जो पनिशमेंट्स हैं, सजाएं हैं, तो उनसे जुड़ा हुआ ये मामला है। उन नंबर का, उन सभी मामलों में जिनमें दंड या दंडादेश सेना न्यायालय ने दिया है। नंबर का और खा, उन सभी मामलों में जिनमें दंड या दंडादेश ऐसे विषय संबंधी किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया है जिस विषय तक संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। नंबर गा, उन सभी मामलों में जिनमें दंडादेश मृत्यु दंडादेश है, वो दंड आदेश जिनमें मृत्यु दंड दिया गया है, यानी उनको मृत्यु दंड को उम्र कैद में भी बदलने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। नंबर 2, खंड 1 के उपखंड का की कोई बात संघ के सशस्त्र बलों के किसी ऑफिसर की सेना न्यायालय द्वारा पारित दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की विधि द्वारा प्रदत्त शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी। नंबर 3, खा, खंड 1, नंबर 3 खंड 1 के उपखंड गा की कोई बात तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रयोक्तव्य मृत्यु दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। नंबर 1, इस संविधान के उपबंधों के अधीन, इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। नंबर का, जिन विषयों के संबंध में संसद को विधि बनाने की शक्ति है उन तक। और खा, किसी संधि या करार के आधार पर भारत सरकार द्वारा प्रयुक्तव्य अधिकारों, प्राधिकार और अधिकारिता के प्रयोग तक होगा। परंतु इस संविधान में या संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि में अभिव्यक्त रूप से यथा उपबंधित के सिवाय उपखंड का में निर्दिष्ट कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य में ऐसे विषयों तक नहीं होगा जिनके संबंध में उन राज्य के विधानमंडल को भी विधि बनाने की शक्ति है। नंबर 2, जब तक संसद अन्यथा उपबंध ना करे तब तक इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी कोई राज्य और राज्य का कोई अधिकारी या प्राधिकारी उन विषयों में जिनके संबंध में संसद को उस राज्य के लिए विधि बनाने की शक्ति है, ऐसी कार्यपालिका शक्ति का या कृत्यों का प्रयोग कर सकेगा जिनका प्रयोग वह राज्य या उसका अधिकारी या प्राधिकारी इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले कर सकता था। तो यहाँ पे जो कुछ संशोधन है, क्या क्या संशोधन हुआ है। नंबर 1, नंबर 1, आर्टिकल 71 हैज बीन सक्सेसिवली substituted by the Constitution 39th Amendment Act 1975 S2 WEF 10-8 1975 and the Constitution 44th Amendment Act 1978 is 10 to read as above WEF 20/6 1979 9 Number 2, the words और राज प्रमुख omitted, जो एक शब्द था राज प्रमुख omitted by the Constitution 7th Amendment Act 1956, जो राज प्रमुख नाम का जो शब्द था संविधान के अंदर उसको omitted, उसको निकाल दिया गया
यानी 7वें संविधान संशोधन के द्वारा 1956 में 29 एंड शेड्यूल। नंबर 3, the word and letters specified in Part A or Part B of the first schedule omitted by the Constitution 7th Amendment Act 1956 S29 and schedules। अब मैं इसका हिंदी में पढ़ लेती हूँ कि अनुच्छेद नंबर 1, अनुच्छेद 71 संविधान 39वां संशोधन अधिनियम 1975 की धारा 2 द्वारा 10/8/1975 से तत्पश्चात संविधान 44वां संशोधन अधिनियम 1978 की धारा 10 द्वारा 20/6/1979 से संशोधित होकर उपरोक्त रूप में आया। नंबर 2, संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा या राज्य प्रमुख शब्दों का लोप किया गया है। नंबर 3, संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा पहली अनुसूची के भाग का और भाग खा में उल्लिखित शब्दों और अक्षरों का लोप किया गया है। तो आज मैंने पढ़ा है राष्ट्रपति की क्षमा संबंधी शक्तियाँ और एक्सटेंड टू एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, 72 कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 72 एंड 73। कल मैं पढ़ूंगी 74 आर्टिकल। 74 आर्टिकल में क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद के बारे में विस्तार से रीड करूंगी। जब तक के लिए नमस्कार। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक एंड शेयर जरूर करें। ओके, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को देखते रहें, सुनते रहें। ओके।